Hello, Assalamu alaikum, and welcome to the DP World Dressing Room, wherever you are watching us. Thank you for joining us. I'm Fakhri Anam, and this is 10 Sports, our continued coverage of the ICC Champions Trophy. Another big day here today, and today we're taking you for action to Lahore, where we have a big clash. It is Australia versus England. There's a lot riding on this game for both the teams. It's going to be interesting to talk about that. But before we get cracking, let me bring in to the conversation my four very special guests, my four very special friends. Joining us in the DP World Dressing Room, first up, I have the wonderful off-spin bowler, hard-hitting batsman down the lower order, and an outstanding broadcaster, Nikhil Chopra. Nikhil, good afternoon and welcome. Good afternoon, Bhaji. Yes, you look good, looking sharp. Thank you so much. I like that. I like that. I like that zest right up front. हमारे लिए तो सुबह ही है ना, दूसरों के लिए दोपहर होगी. When you're in the league of the extraordinary gentlemen, it lifts you. Thank you very much. Extra. साड़ी गल कर रहे हैं. Yeah, I would qualify for the extra heavy gentleman. Right up, next up, ladies and gentlemen, the toe crushing, golf swinging, always smiling, loving Nolakha of the DP World Dressing Room. I've got the legend himself, Waqar Younis. Waqar, good. Hello, sir. Hello, everyone. Good afternoon. Namaste. All good? Welcome. Good to have you here. Recovered from yesterday? I have not. No? I think my recovery will happen after the weekend. I think that's where this is all going now. Chali. I will have to. But thank you. I need the support that I can get. all the support. You were on fire yesterday, which is what we like to see always. Next up, ladies and gentlemen, cricket royalty himself. वो कहते हैं ना, ये कभी भी अपने मुंह मियां मिठू नहीं होते. एक हमेशा कभी अपनी तारीफ खुद नहीं करते. जिस तरह अभी इन्होंने कहा है कि मेरी गल कर रहे हैं basically. Ladies and gentlemen, the man of all ages, one of the greatest all-rounders the game has ever seen, my dear friend, the Sultan of Swing. और बहुत सारे लोग कहते हैं ये आप स्विंगिंग सुल्तान क्यों बोलते हैं? मैं बहुत सारी चीजें यहाँ बोलता हूँ, मैं उसके बारे में बता नहीं सकता आपको. The Sultan of Swing and the Swinging Sultan, cricket royalty himself, the legend Wasim Akram. Good afternoon, Wasim. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. जिथे जा रहे हैं उथे good afternoon. But good morning in Dubai. Assalamu alaikum, everyone. Yeah, absolutely. और कुछ कोई और टाइम जोन को भी कोई गुड नाइट कुछ करना हो आपने तो अगर मूड हो. Australia में it's about 6 o'clock, so good evening in Australia. And finally, with us, we've got real royalty joining us in the DP World Dressing Room. Fantastic player of his time and represented his country with great pride and joy. And it is a great pride and joy to have him here in the DP World Dressing Room. We've got Mr. Ajay Jadeja. Good afternoon, Ajay. Good afternoon. Namaste. Good afternoon. Namaste. And welcome. Adab to all, and are we looking forward to a game between? You know who? कई चीजें हैं जो नहीं बोल सकते, लेकिन जो facts हैं वो facts. वो facts हैं, जो है वो है, उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते. But आपने interesting that in the morning you were telling me that if it was somebody like Jeffrey Boycott or somebody like that, he would have definitely. ये कहाँ से आते हैं? दोनों कहाँ रहते हैं आजकल? ये हमारे legends काफी वक्त बिताते हैं वहाँ. ये दोनों हाँ जी बिल्कुल ससुराल है दोनों के वहाँ फंसे हुए basically. मजबूरी मजबूरी. All right, folks, it's the first game in Lahore for this Champions Trophy, and it's it's just great to see that the ICC Champions Trophy has come down to Lahore, and the newly reconstructed Lahore Gaddafi Stadium. It's looking really, really special. Oh, absolutely fantastic. What a historical place that is for cricket in Pakistan especially. And a lot of memories and a lot of history at the Gaddafi Stadium, Lahore, and it's looking really, really nice. Wasim, it's fantastic how fast this upgradation was done. Yeah, it was very, very impressive. Congratulations to everyone being involved. ये हो नहीं सकता था. Everybody was in two minds कि time पे तैयार होगा नहीं होगा. Looks beautiful, looks stunning. वो आपका जो grill वो चला गया है, वो trench ही आ गई है ताकि for security reasons and all. And अब obviously उस trench से ये भी फर्क पड़ेगा कि जो आपकी अगर बारिश होती है, साफ होती है, उससे पानी निकलना है, वो drainage system भी ठीक हो गया है. Looks stunning actually, look beautiful. But I remember Gaddafi Stadium is actually the heart of Pakistan cricket. पहली दफ़ा मैंने कदम रखा वहाँ पे 1984 वो कैंप में जो मैं गया था. अब मुझे 2 दिन उसके बाद नींद नहीं थी आई
मैं कदाफी स्टेडियम के अंदर चला गया हूँ, ग्राउंड पे मेरा पाँव आया है। लाहौर में रहते हुए मैचेस देखते थे जाके। 83 में इंडिया का मैंने मैच देखा, वो जो ड्रेसिंग रूम के साथ एक है, ढोल वोल साथ थे सबके हमारे। एंड 84 में आई वाज देयर इन दैट कैंप, सो walking on that turf was a big deal for me as a young kid, for any young kid I suppose in Pakistan. So well done everyone, it looks beautiful. Yeah, it is just fantastic. And you say that, you know, the magic of just stepping on those sacred grounds and all. I have memories with you guys over there as well. I used to be a netballer for Team Pakistan. They used to bash me around and make me do fielding all day long. No, I'm just kidding. नहीं तो नए बच्चे को हम फील्डिंग कराएंगे, बैटिंग तो नहीं ना कराएंगे। एक दफा आया था, कई आते थे कि सर थोड़ी बैटिंग मिलेगी, मैं कहना ये बॉलिंग करना आए हो। I was a bowler, so I never asked for batting, but I enjoyed. I know what you mean, how important, valuable it is. और और हमें आज तक ये नहीं पता चला कि आप बैट्समैन थे या बॉलर थे। मुझे नहीं पता, तो आपको कहाँ से पता चलेगा ना कि, you know, I mean, even I'm trying to figure that out to date. You know, Ajit Jadeja, you've played 3 ODIs in Pakistan, and one of them is at the Gaddafi Stadium in Lahore. So, do you recall? Or let me bring that match summary. This is the game that you played, India versus Pakistan. ना याद कराओ हमारा। वो वाला मैच है। Yes, look at that, Jadeja with that score. वो इजाज ने 25 ओवर में मैच खत्म कर दिया था, इसमें मार वही मैं याद करने लगा था, इजाज का मैच है, क्योंकि इससे 2 हफ्ते पहले ना टोरंटो थे। तो देवाशीष मोहंती का नाम नहीं नजर आ रहा है, आएगा भी नहीं। तो टोरंटो में 1 प्लेयर था। टोरंटो में वो पूछता था कहाँ से भगाऊं आपको, कहाँ से निकालूं। इनफैक्ट मैं लेके गया था विक्की के पास, वो कहता है मेरे को, आप तो थे नहीं उस स्टोर पे, तो वो कहता है मेरे से को ना बात करनी है, विक्की को आप जानते हो पहले से, प्लीज मेरे को उनसे इंट्रोड्यूस करो, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। मैं इनके पास लेके गया, पूछ सुने क्या जवाब दिया पहले ही। क्योंकि जड्डू का मेरा पुराना ताल्लुक था, अंडर 19 से था, तो हम लोग शामों में बैठते थे। तो इसने कहा कि यार वो एक नया यंगस्टर आया है। मैंने कहा हाँ देखा आज, और वो पिच ऐसी थी कि वो इधर मारते थे, इधर से निकल जाते, इधर मारते, बीच में से निकल जाता था बॉल। तो उसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, 5 आउट भी किए एक मैच में उसने। तो ये ले आया, शाम में हम लोग बैठे थे, मुझे कहता है यार इससे थोड़ी सी बात कर ले। तो मुझे कहता है हाँ जी, यू नो आपको कैसा लगा मेरा बॉलिंग। वो साउथ का है मेरा ख्याल है शायद, ओके ईस्ट का, मतलब बोलता है इस तरीके से। मैंने कहा भाई अगर तो तू ये समझ रहा है क्रिकेट जो तूने अभी ये 2 मैचों में बॉलिंग की, अगर क्रिकेट ये है ना तो तू फिर फारेगा है। तो तू भूल जा, क्योंकि ये जो तुझे मिला है ना अर्ली ऑन इन लाइफ के अंदर, ये बस वो जो मक्खन मिल गया, अब आइंदा ये ऐसा नहीं होगा। और उसके बाद फिर लाहौर आए, और उसमें ये भी था कि इजाज भाई को उसने बड़ा तंग किया था उधर सहारा में, बहुत तंग किया था। इजाज भाई गाला काट के ना उन्होंने तबाही कर दी थी, यार की पिच्चा बनाती हैं ये वो। तो इजाज भाई ने भी बताया, कहता कि मैं 2-4 गेंद खेले थे, मोहांती बिल्कुल मेरे सर के ऊपर चढ़ आया और आकर मुझे ना घूरियाँ करने लगा। तो उन्होंने मैं कहा मैं थोड़ा डिलीट करना चाहूँगा। तो कहता है और तू लाहौर आई फिर मैं तुम्हें देखूंगा। और उसके बाद देखा ये जो 139 है ना 84 गेंदों पे है, 84 बॉल्स उस दौर में। So he just went berserk. So there's a lot of history this cricket ground carries. Yes, it does. And yes. In fact, my first memory is not from that game. First memory, like he said, under 19 ke time se. We were blessed, you know, we had a tour to Pakistan in 1988, just before this man became the great Waqar Yunus that the world saw. We saw him earlier. और उस मैच में ड्रॉप हो गया था ये, luckily. तो उस and like he said, you know, it was one of those moments. ये मैदान वो है कि ना जब बड़े होते हैं आप ये स्टोरीज सुनते हैं, गेम्स देखी होती हैं, तो उस मैदान में जाके ना एक फीलिंग ही अलग आती थी। और ग्राउंड से लेके ड्रेसिंग रूम का जो सफर है वो बाकी ग्राउंडों में होता है कि आप क्रॉस किया और ड्रेसिंग रूम आ जाता है, जो मेरे को याद है, अभी तो नया देख रहा हूँ। अभी भी ऐसे ही है। सैड टू सी यार, ओल्ड तोड़ के क्यों बनाते हैं हम इंडिया पाकिस्तान में, बट वो लाइन पे आप आउट होके आ जाए, 0 पे आउट हुए, उसके बाद लाइन तक पहुंचते, उसके बाद भी 40 से 1 गज होता था कि ड्रेसिंग रूम तक जब पहुंचते थे आप। और अगर फिर ऊपर जाके तो ये सबसे लंबी वॉक थी अंडर 19 में मेरे लिए। और अगर आपने अच्छा किया हो हाँ फिर तब वो वॉक बड़ी मजे की लगती थी, फिर तालियां ज्यादा देर तो फिर जड़िया गाना सुननी पड़ती। But if I'm not wrong, but look at the beauty about stadium. जिसने भी ये डिसाइड किया था, एक एंड पाजी के नाम पे वसीम भाई का और दूसरी तरफ नहीं एक ही एंड पे दोनों नाम। I thought if it was opposite end, it would have been beautiful, because for any youngster to enter that stadium now and, you know, just as a memory say
कि मैं वसीम अकरम एंड वकार यूनुस एंड से बॉल डाल रहा हूँ, Absolutely. that in itself जड्डू is- का मतलब था कि हम इंडिया पाकिस्तान में क्यों तोड़ के बनाते हैं. He meant the main building जो है, it's an historic building. Legacy building It's like होती है. if you see Lords or Old Yeah. Trafford, they kept their old buildings and built it around it. But probably Gaddafi Stadium was too old, तो सारा change करना पड़ा. Maybe. Actually, Wasim, not everything of the old building is gone. Yeah, There I are hope parts that have been kept. If you see that red brick exterior of the Yeah. building, Bar, it bar. is bahir pe. So bar, It looks, bar. so when you look out from when you're approaching the stadium, it's still showing you the legacy of Gaddafi Stadium. Inside, there are a lot of changes, a lot of good changes. I'm hoping we'll see as we go down. But hats off to Pakistan Cricket Board for doing this in record time. And everybody, जिस तरह वसीम ने कहा था पहले भी, कि every labor worker and contractor and everybody that worked and made sure that this venue was ready to host the Champions Trophy. And we're so very, very happy and proud to see that this has happened. And with that, we're going to take a break here in the DP World Dressing Room. When we come back, there's more about the game today. It's Australia versus England and the Champions Trophy. Stay with us. Welcome back to the DP World Dressing Room. Those are images of the Gaddafi Stadium, Lahore. Look at that, looking really nice with the new upgradation. And a big game today, Australia versus England. And in the DP World Dressing Room, I've got four fantastic gentlemen joining us, and we're going to be talking about this game. But there was a memory, Waqar, you wanted to share about your first steps inside Gaddafi Stadium. Please share it. Look, I have got many memories, to be very honest. वो इसलिए कि मैंने वहाँ पे स्किपर इमरान भाई को पहली दफ़ा मिला और मेरी पहली जो मुलाकात थी, that was something incredible. अभी तक लाइफ के अंदर वो जो हाथ शोल्डर पे रखा था, वो I still feel it. So वो एक बड़ी मेमोरी थी जब मैं पहली दफ़ा मिला और पहले दफ़ा उन्होंने जब मुझे शोल्डर पे हाथ रखा, उन्होंने कहा तुम शारजा जा रहे हो. And ऐसे लगा जैसे ज़मीन जो ना किसी ने नीचे से निकाल ली है मेरे पैरों से. It was that memory that stays with me. और दूसरा फिर मैं सॉ वसीम भाई क्योंकि पहली दफ़ा लैंकाशायर से खेल के आए थे तो वो फूल वाला इन्होंने एक ट्रैक सूट पहना होता था. उस ज़माने में नहीं होता था जी पाकिस्तान के ट्रैक सूट पाओ तो ये मिलती नहीं थी उस जमाने वाइट. हाँ, तो इन्होंने मुझे अभी भी याद है ब्लू कलर का वो फूल लगा हुआ था. लाइक दैट वाज समथिंग एंड ही वाज गोइंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड. दैट्स मेमोरी आल्सो. लेकिन जो वेरी फर्स्ट मेमोरी जो मेरी कदाफी स्टेडियम की थी ना, वो क्योंकि आई कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन. जट कल पता लगा एक्सप्रेस कल तेन पता लग गया ना जट है. हाँ जी, जट तो बिहाड़ी बुरे वाला से ताल्लुक है. तो मेरा पहला था कि मैं पैको भाई आप भी मेरे साथ खेले. उनके ट्रायल्स थे अंडर 19 के. तो मैं पहली दफ़ा मैं कदाफी स्टेडियम में, दैट वाज माय फर्स्ट विजिट. जैसे वसीम ने कहा ना कि आप जब अंदर घुसे और एक ऐसे दिखा ना जब वो कदाफी स्टेडियम अंदर से ਅਸੀਂ खेलन वाले सा मेरा मतलब टुट्टे भज्जे ग्राउंड च सडनली यू नो सी अ मैसिव स्टेडियम, ब्यूटीफुल स्टेडियम. हिस्ट्री तो उसकी थी. तो दैट वाज रियली यू नो अमेजिंग सीन्स आल्सो. और फिर जब मैं गया और आज भी याद है मुझे मसूद अनवर लेफ्ट आर्म पे ना प्लेट टेस्ट मैच में पाकिस्तान आल्सो. क्या रखा था? करेला. मसूद अनवर का करेला. वो ही वाज द इंचार्ज ऑफ द पाको का. वो कप्तान शायद बन गया था जो व्हाटएवर ही वाज. We all played under 19 for Paco. मसूद था, एजाज था. Yeah. Quite a few. गुलाम अली था. आज जलानी एक ऑफ स्पिनर थे. हम स्पेशली बिहाड़ी से मैं आया था उस ट्रायल्स के लिए. तो उस ज़माने में वाइट्स यू नो वो निकरे शिकर वाला चक्कर नहीं होता था जी. बड़ा कोई डिज़ाइनर पहना हुआ है, वाइट सीधे सीधे पहनो, ट्रायल पकड़ो. और कदाफी स्टेडियम भरा हुआ है, लड़कों ही लड़कों, सब ने वाइट्स पहने हुए हैं. एंड वेट करना पड़ा, 2-2.5 घंटे वेट किया जी बारी की दुआनी. तो इवेंचुअली बारी आई, मुझे नया बॉल फेंका गया. उस ज़माने में वो नेट्स होते थे ऐसे खुले कर देते थे और बांस लगे होते थे. आजकल तो बड़े लगाते हैं वो बांस होते थे. हाँ, बैम्बू वो लगे होते थे और खुले होते थे, दूर दूर लगे होते थे ऐसे. मुझे बॉल मिला, थोड़ा सा ग्रीन टॉप विकेट था. तो मैं जो क्योंकि एक्साइटमेंट में मैं भागा हूँ, रनअप शनअप मार के पहला बॉल की था जोर लगा के. मैं पेस दिखानी थी. पहला बॉल किया, ओस बम्बू चुप बूम था. ओके, उन्होंने देखा पागल है, उन्होंने खैर क्या चलो लेट हिम डू अनदर वन. सेकंड बॉल था दूसरे बम्बू च आउट स्विंगर. हाँ जी, तीसरा था वो उधर उतू दी पता नहीं वेरेवर इट वेंट. उसके बाद मसूद अनवर आई स्टिल रिमेंबर का हैदरा जी बॉल दे. मैंने कहा शाबाश चल. एंड दैट वाज माय फर्स्ट विजिट. एंड देन कोइंसिडेंटली व्हेन आई प्लेड फॉर पाकिस्तान maybe 5, 6, 7 years later,
Masood Anwar was the one who played test match with me and we were the advocate for him कि यार ये बंदा बहुत अच्छा खेलता है। उसने बड़े और आउट इमरान किए भाई फर्स्ट को क्लास में। हमने इमरान भाई को कन्विंस किया कि he is the man who should be playing. He played 1 test match or 2 test matches. वेस्ट इंडीज के खिलाफ लाहौर में I think debut लाहौर किया वाला था। टेस्ट मैच उसने मैं टेस्ट मैच बचाया था 40-45 गोइंग टू दैट कैंप, पहले दिन के बाद जब मैं गया तो उसका कैंप खत्म हुआ तो मैं वहां से सीधा लंडे बाजार गया। वहां से वाइट मैंने पेंट ली, उस पे पेप्सी लगे लिखा हुआ था। वो मैंने इमरान भाई को देखा हुआ था या जावेद भाई को लोगो लगे हुए थे, मैंने वो ला के पेंट से उतार के अपनी ग्रैंड मदर मेरी बड़ा प्यार करती थी, मैंने कहा ये जरा सी दे मेरी शर्ट पे। तो उन्होंने फिर वो मुझे सी के दिया, वो स्टिकर लगा के दिया। तो उस तो बाद गए कभी लंडे? उसके बाद नहीं, कराची वाले लाइट हाउस गया था ड्यूरिंग अंडर 19 या वो YMCA में ठहरते थे सदर में, एंड देन वहां पे कपड़े वहीं से लेते थे। लंडे से सीधा लंदन गए भाई। I know. That's how it went down. जी नहीं, उस जमाने की बात हो रही है, देखिए ना, उस जब हम ये, क्योंकि अब वो बचपन की यादें करा रहे हैं, जब क्रिकेट मैच देखने जाते थे या प्लेयरों को देखते थे ना, तो बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग आप देखते जरूर थे, लेकिन एक खासियत होती थी कि हर आदमी अपने कपड़े खुद सिलवाता था। तो आपको वो प्लेयर दूर से अलग नजर आता था, किसी की छोटी बाहें, किसी की लंबी, किसी के इतने बड़े कॉलर, किसी ने यहाँ तक टी शर्ट करवाई हुई है। आजकल तो ऐसा लगता है स्कूल के यूनिफॉर्म है, क्योंकि सबने ही सेम टी शर्ट डाली हुई है, सेम कट है, सेम है। तो पहले आई थिंक एक्सप्रेशन जो था सिर्फ आप बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग में नहीं देखते थे, आदमी कैसे कपड़े पहन के भी आया, मजबूरी भी होती थी कई बार, मांगे हुए कपड़े भी होते थे। जड्डू इस तरह ही लग रहा है स्कूल चल रहे हैं सारे। मेरा कहना मतलब है ही ऐसी जड़े कपड़े पाए हैं ना, सानू दिते गए, सानू डिसिप्लिन कितना जा रहा है, हमें डिसिप्लिन किया जा रहा है, वरना पता नहीं खुदा न खासे समझते हैं कि शायद हम एक्चुअली ड्रेसिंग रूम में तौलियों के साथ शो कर रहे होते हैं। नहीं, वैसे ही अपने ही देख रहे हैं, या इंडिया में देख रहे हैं या पाकिस्तान में, दुनिया में भी देख रहे हैं, लेकिन इधर पता है हमारे खानदानों में यही होता है ना कि थान लाओ, खुद कपड़े बनवाओ, सस्ते पड़ते हैं। That's fantastic. Anyway, Gaddafi Stadium, just great to see it the way it is, and hosting the third ICC tournament here, other than the 2 World Cups, 87 or 96 World Cup ke baad. So it's really good to have ICC tournament back in Pakistan, and especially at the Gaddafi Stadium. And once again, well done Pakistan Cricket Board for making that happen. Let's talk about Australia now. And Australia, सीधे भूल ही गए मैच है, आपको पता है ना, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका आज। अच्छा नहीं साउथ नहीं श्रीलंका नहीं हो सकता क्योंकि श्रीलंका है ही नहीं टूर्नामेंट। Well done, Wakan. You're awake. Good job. चलिए आप दोनों की ससुराल से शुरू करते हैं। Australia in their current form with their current captain Wasim. Your thoughts? देखिए, कैप्टन तो स्टीव स्मिथ है ना, इज वेरी एक्सपीरियंस। उसको जो भी इंसिडेंट्स हुआ था आफ्टर दैट कप्तानी नहीं थी करनी, बट फाइनली आई एम ग्लैड सैनिटी प्रिवेल्ड। ही इज वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स, वेरी एक्सपीरियंस, वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द गेम, मॉडर्न ग्रेट्स। ठीक है, उनके 4 प्लेयर नहीं आए, उनके 4 से 5 प्लेयर इंजर हो गए, कप्तान उनका इंजर हो गया, मिचेल स्टार्क नहीं आया, हेजलवुड नहीं आया, बट इट्स अ वेरी गुड साइड। आई वांट टू सी this boy do really well. Fraser McGurk, he's something. Jake Fraser McGurk, he's a very special talent. You've been talking about him even Since, when last 2 years. You've last been 2 telling years. us about it. Yeah. But I think he has to evolve his game because T20 one-day cricket is different, but still a very good side. I mean, okay, 3-4 मेन प्लेयर इनके नहीं आए। अब अगर हम इनके बॉलर्स में देख लें, शेन एबट आ गया है, उसके बाद बेन है, एंड देन नेथन एलियस है, देन स्पेंसर जॉनसन, another left-hander. Tanveer Sangha is a spinner, isn't it? right arm left. And then of course Adam Zampa has been getting a lot of wickets. Still looks a very good side. Yeah. They're mentally very strong. वो recent form पे जाओ, ठीक है, bilateral series इन्होंने सीरीज नहीं ली, सीरियस नहीं ली, मगर जब भी ICC में आते हैं, किसी भी टूर्नामेंट में आते हैं, ये टीम तो सख्त होती है, अब जो मर्जी कर लो। इन्होंने भी 6 स्पिनर रखे हैं। 80 नहीं रखे, बस हमारे अलावा everybody else is. Nikhil, you look at that squad. And what are your thoughts? What was going on in the Australian selectors' mind? What were they putting together? Were they reading the conditions in the subcontinent and this area and then think, this is how we're going to construct this team, especially with the injuries that have happened and the replacements that are taking place? I mean, take us inside the mind of the selectors, the Aussie selectors. ऑस्ट्रेलियन टीम कभी भी आप देखें, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप, आईसीसी की कोई भी ट्रॉफी खेल रहे हो ना, बड़ी इन डेप्थ सोच के साथ अपना वो स्क्वाड तैयार करते हैं, किस तरीके की कंडीशंस रहेंगे। एडम जैम्पा जब भारत में 2023 में वर्ल्ड कप खेल रहे थे, ही वाज वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर्स, 23 विकेट्स ही गॉट। अगर वो इंजर्ड होता है तो उनके पास एक लाइक फॉर लाइक बैकअप पे एक राइट आर्म लेग स्पिनर है। पेस बॉलर्स आप मिचेल स्टार्क नहीं है, पैट कमिंस नहीं है,
but they've got able guys. Mitchell Stark की जगह they've got the variety. Spencer Johnson है उनके पास. You look at Nathan Ellis, Sean Abbott. So they cover all ends And up. that all-rounder Aaron Hardy is also quite okay. Very good, Paji. So they'll always look to try and get the right sort of mix between the experience and the youth, per se to say. Right. Jake Fraser McGurk जो पाजी कह रहे हैं, incredible player. Ricky Ponting उनके लिए बहुत सालों से बोलते आए हैं, and he's a special talent. Make no mistake about it. गेंदबाजी के लिहाज से ग्लेन मैक्सवेल जिस तरीके के ऑलराउंडर है, we always with his nickname कि the big show. Big show is always on show when जितना बड़ा वो प्लेटफॉर्म होता है. Yeah. I'm sorry, जब भी आप सामने बैठे हुए हैं वो अफगानिस्तान वाला मैच देख लीजिए. जहां ये मैच फंसे होते हैं ना ऑस्ट्रेलिया, somehow they know how to get the job done and they know how to get across the line. Yeah. तो बड़ा सोच समझ के टीम बनाते हैं कि भाई अगर अच्छी विकेट मिलती है तो मेरे मैच विनर्स कौन हैं. Look at that record. उसके हिसाब से look at that record. स्ट्राइक रेट चेक करो. वनडे में बाकी ऐसा छोड़ स्ट्राइक है. रेट निखिल बड़ा कम देखे हैं हमने. Yes. भाई वनडे में आप और आप मजे की बात देखो ना, जिस तरीके से ये बैटिंग भी करते हैं, वो 126 का स्ट्राइक रेट, 23-50 है, 4 वो 100 है. एंड हैव अ लुक एट दैट, 75 विकेट. ऑफ स्पिन डालते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट खिलाड़ी हैं, फील्डर. गन फील्डर, और कहीं ना कहीं जानते हैं कि कौन से बॉलर को जाके टारगेट करना. व्हाट आई लाइक द ऑस्ट्रेलियन वे, किस तरीके से खेलते हैं ना, बगैर डर के खेलते हैं. और बगैर डर के आप कोई भी काम करोगे ना, दैट्स वेयर But I एक वो think जीनियस that निकलता है. guys, sorry, that also depends on the culture where they come from. Yeah. They are a culture. If अगर वो हारते भी हैं, वो एक दिन अखबार में एक न्यूज़ आएगी, न्यूज़ चैनल पे एक न्यूज़ आएगी, and then they move on to the next day. Unlike our part of the world, वही पुश्तों की पूछती रहती हैं. जो बच्चे पैदा भी नहीं होते वो पूछते हैं जी आप वो मैच क्यों हारते. बेटा तू तो पैदा भी नहीं सोया हो तो. So बता के जाते निकाल हैं. होती है ना, तेरी तो होती है. Yeah. So that's the culture. They move on very quickly. अब जब ये वर्ल्ड कप जीता है 2023 में, वो पैट कमिंग अकेला उतरा है, 2 कैमरे वाले थे, टीवी वाले, वो बाहर टैक्सी फाड़ के घर चला गया. और सामान भी अपना खुद ही धकेलते हुए करते हुए वो भाई स्पोर्ट को उस तरीके से लेके चलते हैं ना कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं. Yeah. कभी आप हारेंगे, कभी जीतेंगे. अगर हारते हैं, यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड यू डोंट रिपीट दोस मिस्टेक्स. यू आर अ बेटर प्लेयर. ये हम अपनी यंग जनरेशन को कैसे सिखा सकते हैं? भाजी वो आता है मुझे जो समझ है कि किस तरीके से आपका सपोर्ट स्टाफ, जो कोच, जो कप्तान, जो सिलेक्टर है, जाके वो फ्रीडम अगर आप दे सकते हो ना. नहीं, मैं बात कर रहा हूँ फैंस की. फैंस को कैसे Young generation. कल पाजी एक बड़ा अच्छा सवाल आया था, हैशटैग आस्क द रूम. सॉरी Yeah. हाँ. जो पाकिस्तान टीम को लेके इतना क्रिटिसाइज कर रहे थे, यार देखो कोई भी टीम हारती है, जीतती है, एक टीम को सपोर्ट कब चाहिए होता है, व्हेन द चिप्स आर डाउन. या किसी बॉलर का, किसी भी बैट्समैन का दिन खराब कब होता है, आप अपनी टीम को उस समय नहीं सपोर्ट करेंगे जब सब कुछ अच्छा चल रहा है. तो दुनिया तो तब आपके साथ है ही. आई थिंक उस टाइम पे यू हैव टू सपोर्ट योर टीम अ लॉट. What I despise Good, or I Nikhil. hate is जो बदतमीजी करते हैं ना सोशल मीडिया पे, वो no, जो क्रिकेट पे बात करते हैं, पूरे प्रोग्राम चलाते हैं और उनको देखने वालों पे ज्यादा गुस्सा है मुझे. जी हाँ, कि वो आप क्रिटिसाइज जरूर करो, क्रिटिसाइज करो, हैव अ गो एट देम एंड गिव देम. अगर सोल्यूशन बनी है तो बदतमीजी ना करो, बिकॉज दे आर बिग नेम्स, दे रिप्रेजेंट योर कंट्री. एक्चुअली सर माल बिकेगा क्या मैं फिर? नहीं तो देखने वालों को कसूर है ना फिर. ऐसे ही है. इससे इंटेलेक्चुअल चेक होता है, व्यूअरशिप का इंटेलेक्चुअल चेक होता है. That's a very good and an Yeah. interesting thought process, and I अब think व्यूअरशिप पे आप कोई अच्छी चीज लगाओगे, आएंगे आपके 50 व्यू. कोई बकवास लगाओगे तो सारी दुनिया वाह जी वाह. ये इंटेलेक्चुअल लेवल है. तो ये तो खैर बड़ी बदकिस्मती की बात है. आई थिंक ओवरऑल मीडिया अराउंड पाकिस्तान इन द सबकॉन्टिनेंट नीड्स टू एक्चुअली वर्क टुवर्ड्स काइंड ऑफ ब्रिंगिंग दैट थॉट प्रोसेस इन द माइंड्स. हम बार बार रिमाइंड कराते हैं वसीम, आई नो यू आर अ ग्रेट एडवोकेट ऑफ दिस, कि ये बदतमीजी वाला एलिमेंट नहीं होना चाहिए. एंड आई डोंट थिंक वी ये 2-3 मुझे मिल लेगा यूट्यूबर, जरा मिल तो ले जरा. या उनको पता है कौन है वो जो अपने प्लेनों से बदतमीजी करते हैं यार. I सॉरी think it's unfair. Not only आपने कहा ना कि अपने मुल्क के स्टार्स हैं रिप्रेजेंटेटिव. No, Yeah. just human decency requires कि आप किसी भी इंसान से किसी भी तरीके से बात कर रहे हो, मुखातिब हो रहे हो, खास तौर पे एक पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर या पब्लिक के अंदर, तो थोड़ी बहुत आपको एक रख रखाव होना होता है, एक इज्जत होती है. ये आपकी तरबियत का हिस्सा है. आप अगर आके बदतमीजी कर रहे हैं तो फिर आप ये बता रहे हैं कि आपके घर में जो तरबियत है आपकी, वो इस नौइयत की हुई है Yeah. कि आपको ये प्रमोट किया गया आपके घर के अंदर. So that reflects poorly on your family, your parents, your upbringing. Not the right way of doing this. I think we need to everybody needs to check that. Let's talk about Travis Head, who विकी तेनू तो मैनू कह रही नहीं ना लग रहा है. फीलिंग आ रही मैंने. बहुत अच्छे. Let's get down to Australia. We talked Travis Head, Ajay Jadeja. He was explosive in this 2023 World Cup.
Look at that stat for him. I think fabulous, and I think the average is what you really need to look at. Yeah, I know. Plus the strike rate, you know, that's a bonus for sure. But अगर average वो ना हो ना, फिर ये strike rate Maxwell के साथ भी आप देखते हैं. तो ये की और I mean Indians के लिए तो हमारे लिए तो ये actually headache बने हुए हैं. जहाँ main games हैं, you know, that final that you remember, and then the टेस्ट मैच में भी जो पूरी सीरीज वहाँ घुमा दी उसने. वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो फाइनल भी था. फाइनल था. तो ये एक स्पेशल प्लेयर है और आई थिंक इसकी खासियत जो मुझे दिखती है, क्योंकि आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट जो हम इतनी डेटा ड्रिवन है और एनालिसिस होती है, क्योंकि इनका अंदाज ही बिल्कुल अलग है, इनके जो एंगल्स हैं खेलने के वो बाकी बिल्कुल अलग हैं. Sorry, Ajay Bhaji, just elaborate angles, because a lot of people won't understand what do you mean by angles. Yeah. So just for layman terms, कि जब आप angles की बात कर रहे हैं तो आप क्या कह रहे हैं कि इनके angles अलग हैं. शॉर्ट में. हाँ. एंगल्स अलग का मतलब ये है कि देखिए सिंपल चीज है ना, ये गेंद आ रही है आपकी तरफ, आपने उस गेंद को खेलना है. अब नहीं भाई, इधर छोड़े, कप नीचे रखें, उधर आए जरा पिच के ऊपर और हमें बताएं ना जरा. बैट से नहीं, ये इससे बेटर नजर आएगा. ओके, हाँ. इसको ऐसे कर देता हूँ, नहीं तो लोगों को लगेगा कि हम वो दिखाने के लिए कर रहे हैं. मतलब ये गेंद है आपकी तरफ अगर आ रही है तो आप इसको कैसे मीट करते हैं. ज्यादातर बल्लेबाज ऐसे मीट करते हैं ना, ये बॉल आती है, इनका बल्ला कभी वो यहाँ से आता है, तो वही जो गेंद है जो बाकी बल्लेबाज डिफेंड कर रहे होते हैं, ये उसको पिक कर रहे होते हैं. वही गेंद थोड़ी इस तरफ है, जो बाकी लोग उसको अटैक कर सकते हैं, ये उसको प्रॉब्ली छोड़ देते हैं या डिफेंड करते हैं. एक पिकअप शॉट जो कहते हैं उसको. तो जो गेंदबाज की अच्छी गेंद है, सपोजिटली अच्छी गेंद क्या होती है, एक जगह पे, बट वो अच्छी वहीं तक है जब आप हर आदमी उसको ठीक उस तरह से अप्रोच करे. ये ऐसे होते हैं समझो, मान लो, तो वो अच्छी गेंद उनके लिए खराब है. तो आई थिंक वो वक्त लगेगा कई प्लेयरों को फिगर आउट करने में. आई थिंक बुमराह ने थोड़ा सा अंदाज, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है हमारा बॉलर, वो जल्दी पकड़ लेता है. तो ये जो ऑडनेस है आज की डेट में वर्ल्ड क्रिकेट में, मुझे ये लगता है कि जितनी ऑडनेस है ना किसी टीम में या इंडिविजुअल में, वो उतना सक्सेसफुल ज्यादा हो रहा है, क्योंकि प्रेपरेशन इतनी होती है एक करेक्टनेस के लिए. बाकी टीमें वो तैयारी करके आती. ब्रायन लारा भी इसी तरह था, नहीं? ब्रायन लारा वाज वन एग्जांपल का जो अच्छे गेंद पे कहां से बल्ला आता था. और नॉर्मली वो एंगल की बात करना कि जो जिस बॉल को मिड ऑफ पे या मिड ऑन पे खेलना चाहिए था, मिड ऑफ या मिड ऑन पे खेलना चाहिए ना, वो ये ऐसे प्लेयर हैं कि इनकी रिस्ट और इनका जो हाथ है इस तरह चलते हैं कि वो मिड ऑन की बजाय वो मिड विकेट पे खेल देंगे या अंदर खेल देंगे. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन. ब्रायन लारा से एक याद आया, हमारा शारजा में मैच था, क्विक वन. हमारे एक बॉलर थे बड़े टैलेंटेड, तो नए पाकिस्तान टीम में आए, तो वकार भी मेरे साथ था. तो मैंने कहा यार नाम छोड़ दे, बाद मैं दस देंगा, ये बता देगा. अताउर रहमान की तो नहीं बात. नहीं. तो इशफाक नाम था, वेरी टैलेंटेड, लंबा था के मारता था. तो उस मैंने कहा हमारी मीटिंग हुई, वकार भी, हम तीनों थे, 2 सीनियर बॉलर उसको बता रहे हैं. तो उसको कहा कि यार कल लेफ्ट हैंडर ब्रायन लारा बड़ा डेंजरस प्लेयर है, जरा देख के. वो टीमें भी आ रही हैं, ये पता नहीं अराइवल हो रहे हैं उस वक्त गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में. those live shots coming in. I don't care. Yeah. It's okay. So yeah. I don't want to see a bus. Yeah. तो मैं कहा ब्रायन लारा बड़ा डेंजरस प्लेयर है, अच्छे वीक है, कहना पाइन रहने दो, खब्बा मेरी तोरे. तोर का मतलब होता है कि बस मैं इजी है मेरे लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. हाँ, लेफ्ट हैंड मेरा बनी है, तोर है. मैं कहा ओके, मैं कहना पाइन लेफ्ट हैंड छड़ दो तुसी, मैंने कुछ ना दसो, आई नो हाउ टू बॉल एट लेफ्ट हैंडर. 160 कर रहा ब्रायन लारा. और क्रिकेट में हम कितनी बात करते हैं कि ऑड है एक्शन या ऑड है स्टाइल खेलने का, ले ले ऑड एक्शन. बट वही एक्चुअली जो कॉमन चीज होती है ना, वो एक्सेप्शनल हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो कॉमन है. एक्सेप्शनल होने के लिए भी आपको ऑड होना बड़ा जरूरी होता है. सिर्फ कॉमन सेंस ऐसी है कि जो एक्सेप्शनल हो सकती है. और वो आजकल है कॉमन सेंस. Well, welcome back to the DP World Dressing Room. Right now, images out of the new Gaddafi Stadium dressing room on your screens. And this is Team Australia's dressing room. And look at that. Uniforms are all laid out and the boys getting ready. These are shots when they were out in the ground. We snuck in camera and got these images. And now back to the DP World Dressing Room, where you can see the DP World truck parked right in front of you. And you see that ball on top of that DP World Dressing Room's truck. It is a nice ball that you can win, and hashtag ask the room towards the end. In the DP World Dressing Room, I've got these 4 fantastic gentlemen with me. I've got Nikhil Chopra, Waqar Younis, Wasim Akram, and Ajay Jadeja. Let's talk about the English team now, Ajay. You look at this English team. They've been struggling lately as well, but what do you think?
I mean, it's sad to, I mean, not surprising to see, not sad to see जो टीम है इनकी आप देखें, इनके 11 में अगर आप देखें, फिल सॉल्ट जैसे खेलता है, दुनिया भर में सबको मारता रहता है, जो रूट इतना सॉलिड प्लेयर है, हैरी ब्रूक जो है वो मेरे को बहुत कमाल का खिलाड़ी लगता है, सब कॉन्टिनेंट में अच्छा करता है, जॉस बटलर, लिविंगस्टन, तो ये इनकी बैटिंग इतनी सॉलिड है, इसके बावजूद जो इनका हाल रहा है पिछले कुछ सालों में, वो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है, और मे भी इसलिए क्योंकि गेंदबाजी में ना वो पैनापन नहीं नजर आता, मार्कवुड है, एक पेस है, जोफ्रा आर्चर के पास जो स्किल्स हैं उतना देखने को नहीं मिलता, मतलब अगर एज अ बैट्समैन या एज अ प्लेयर मैं देखता हूँ उसके पास क्या क्या है, और तो लगता है यार ये तो मतलब कहाँ मारने देगा, कहाँ खेलने देगा, लेकिन आप मैच में उसको देखें तो फैटी लगी होती है उसको हमेशा. So it is a surprising thing what is happening with this team, and I don't know why. One reason that I can think of is maybe that they are being asked to play in a certain way rather than what they can do best. Yep. Waqar, let me bring this conversation to you. 4 ODIs in a row they've lost. Yeah. They've just recently lost 3-0 to India in the series. And they're now currently ranked at number 7 in the ICC ratings. How do you come into a tournament like this and then go up against teams the way especially Australia is, or maybe India would be, they're maybe they're different groups, but you know, if they have to face off with each other, how do you mentally get yourself rounded? And then just Ajay Jadeja bhai just said that, you know, it's maybe they're being told कि इस तरह की क्रिकेट खेलो, वो जो बेसबॉल क्या है, उस तरह का कुछ खेलो, और बेसबॉल का सत्यानाश तो हो गया हो गया, और हो कुछ और रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए, बेसबॉल का ये खतरा तो रहेगा कि यू नो जब आप इस तरह की क्रिकेट आप बिल्कुल ही जो कहते हैं ना कश्तियां साड़ के आप जाओगे तो फिर प्रॉब्लम कश्तियां जला लेते ना. अच्छा, कश्तियां जला के साड़ जलाने को साड़ना कहते हैं. तो जब आप कश्तियां जला के जाओगे तो फिर ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा. हाँ, आप आउटस्टैंडिंग भी खेलोगे, आप ऐसा लगेगा कि यार इससे अच्छी टीम कोई नहीं है, क्योंकि आप अग्रेसिव खेलते हो, आप रिस्क लेते हो, आप प्रेशर फ्री खेलते हो, यू नो फियर कोई नहीं रहता है. तो आई थिंक ये यू नो उस फेज से जा रहे हैं कि जहाँ वो जो बेसबॉल है ना इज गॉन इनटू नेगेटिव. यू नो बहुत अरसा ये पॉजिटिव भी रहा है, डोंट फॉरगेट दैट, क्योंकि इन्होंने डोमिनेट किया है वर्ल्ड को और इसी टीम ने डोमिनेट किया है. इसमें कोई खास चेंजेस आई नहीं है, यही उनकी बॉलिंग थी, यही उनकी बैटिंग थी और बड़े अरसे से खेल रहे हैं. फ्रेश लड़के कम हैं इनकी टीम में. जब अगर ऑस्ट्रेलिया को देखा जाए और इनको देखा जाए कंपैरिजन, तो इनकी टीम में लड़के जो हैं वो ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, इनको खेलना आता है. हाँ, are they gonna play the same way baseball here also on a sluggish pitches? That is going to be a little dangerous, but they're very dangerous side. Yeah. Nikhil, let me ask you this. Just like Pakistan, they've also come in with one specialist spinner. And Livingston is their only other option. 71 की average से वो bowling कर रहे हैं, but should be a challenge for them. Very surprising. अब पाजी बताएंगे लाहौर का विकेट वो कैसा है, बट आप सब कॉन्टिनेंट में जब भी खेलने जाते हैं, यू नीड दैट सेकंड स्पिनर. आदिल रशीद अनुभव दे कि इनक्रेडिबल, 146 मैचेस में 212 विकेटें हैं, इकॉनमी बढ़िया है, बट फर्क ये है ना कि दूसरी तरफ से कौन बॉलिंग डाल रहा है. एक तरफ से तो आपने प्रेशर बना के रख लिया, बाकी सब टीमें अब जानती हैं कि भाई अब 5वां बॉलर जो है ना उसको कैपिटलाइज करना है. इट टेक्स 2 to tango. वो प्रेशर बराबरी का रहता है तो उससे बड़ा फर्क रहता है. एक स्पिनर के ऊपर दारमदार रहे, वो मैं मानता हूँ बहुत बड़ा वो एक रिस्क, especially 50 overs, you know, and on these pitches. Joe Root, I mean, one of their fine bats, but why is he being demoted to number 4? What is the thought process there? सिक्योरिटी जो हम बात कल भी कर रहे थे ना परसों की, सिक्योरिटी नहीं उनकी वो एक जो बंदा एक आपको चाहिए जो ब्लू होता है, वो है क्या उसे कहते हैं, कामाकाजी प्लेयर हैं दोनों जो टॉप पे हैं, फिल सॉल्ट और बेन डकेट. बोथ आर वेरी गुड प्लेयर्स. T20 में फिल सॉल्ट जिस तरीके से खेलता है, वनडे में वैसे नहीं खेल सकते आप, बिकॉज आप 10 ओवर में अटैकिंग जरूर खेलो, बट आप 2-3 विकेटें गिर जाएं. राइट. अब नंबर 4 पे आई मीन इसकी 11 सेंचुरी है नंबर 3 पे जो रूट की. अब उसको 4 पे किया कि ऊपर से जल्दी आउट हो जाए, कम से कम नीचे से सिक्योरिटी चाहिए एक बंदा, जैसे स्मिथ है, जैसे बाबर है, जैसे विराट है आजकल, वो जो मिडिल में एक बंदा ऐसा चाहिए जो थोड़ा टाइम जरूर ले ले, लेकिन वो एक सिक्योरिटी दे के एक एंड सेफ है. So is that perhaps the only reason कि सिक्योरिटी की डेप्थ आ जाए बैटिंग के अंदर, अगर ऊपर से कोलैप्स हो जाए तो पीछे जो अगर आप इनका ये देखें, स्कॉट भी देखें इनका भी एक स्पिनर लेके आए हैं ये भी. हाँ. आदिल रशीद है और लिविंगस्टन करेगा 4 ओवर. आई थिंक उसकी भी परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं है, वो कम से कम 4 या 2 से 4 ओवर दिन में करता है, वो एक मैच में करता है, सो पूरे 10 भी नहीं करता.
अब ये इनके बैटर्स देख लें, जो प्रॉपर बैटर्स हैं वो 3 आपको नजर आ रहे हैं। हैरी ब्रुक जो जड्डू कह रहा था बहुत जबरदस्त प्लेयर है, पर इतना चला नहीं। विकेट कीपर्स को ज्यादा नहीं आ गए। Well, I But think Tom Mahmood is a Benton is very good Yeah, form. very good. He might not make it to playing 11. He did Saqib really well. Mahmood is a surprise, isn't he? Saqib Mahmood made a comeback. Jofra Archer, like he said, he's got pace. Gus Atkinson is there. Jamie Overton is there. Bryden Cars is there. The more pace, Mark Wood. पेस बट अब स्लो विकेटों में पेस वैसे थोड़ा तंग तो करती है अगर आप बैक ऑफ लेंथ बॉलिंग करें। अगर आप लेंथ अब लाहौर की विकेट जो है, जो कदाफी स्टेडियम की पिच है या उसका देखा है तो एवरेज स्कोर इज 290 295 है वहाँ पे, और चेस भी बड़ी आसानी से होता है। अब देखने के ड्यू फैक्टर कितने हैं। दिल्ली में आजकल ड्यू होगी, लाहौर इज सिमिलर काइंड ऑफ। दिल्ली में है, फेब में है ना, या सो लाहौर में ड्यू होगी। ऑल्दो एक केमिकल डालते हैं, मैं बता दूं केमिकल करता क्या है। वो जो आपने देखा होगा स्प्रे कर रहे होते हैं बिफोर द गेम इनिंग, वो जब ओस गिरती है या ड्यू गिरती है, बजाय के घास पे रहने के वो स्लिप होके इनटू द मट्टी में चली जाती है। That's what that chemical is here. हम समझते थे मच्छर मारने की दवाई डाल रहे हैं ताकि मैच के पहले सारे वेसलीन का काम करती है ना, वेसलीन हाँ, it just- yeah. लाइक अ वेसलीन। मच्छर मारने की डिफरेंट दवाई होती भाजी। हर स्प्रे सेम नहीं होता। हर स्प्रे सेम नहीं होता। वो चिड़ी भी स्प्रे खाती है। बट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी यू डोंट वांट टॉस जो है इतना फर्क डाले, थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर ले। इट शुड बी इवन फॉर बोथ टीम। नहीं, जैसे किसी ने कहा था, 100 पूछा था हमसे आज आज रूम में पूछा था कि आप या- दिन में क्यों नहीं शुरू कर लेते? नहीं, या फिर अगर रात को जाना है तो शुरू ही रात को या करो। दोनों टीमों के लिए बराबर है ना, चांस मिले। अगर दोनों वो टीमों के चाहिए। बराबर। आप ये कह रहे हैं कि हम 3 बजे यहाँ बैठे हुए हैं। नहीं, मैं तो नहीं 3 बजे, मैं तो सो जाऊंगा टेबल पे ही। वैसे हमने एक सीरीज यहाँ पे वैसे- ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट की थी, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा थी और मजबूरी थी सीरीज करना, वनडे मैचेस, और यहाँ पे मैच शुरू होता था 5 बजे शाम को। हाँ जी। और रात ये को 1 सारे बजे खत्म कमेंटेटर को तो 12 होता है कि हो गया। नहीं, but यार ऑस्ट्रेलिया में तो अभी क्या टाइम हुआ है, शाम तो होने ही लगी है। याद है ऑस्ट्रेलिया का थोड़ी सोच रहे हैं, वो तो इंडिया पाकिस्तान का सोच नहीं, बट खेल तो आज ऑस्ट्रेलिया रही है। मैं तो उनके लिए सोच रहा हूँ, उनको वो नहीं प्रॉब्लम। इतना तो हम नहीं सोचते जितना आप सोच रहे हो। It is bit of a undue advantage the team who wins the Yeah, toss, yeah, it because is. due does matter. It does. उससे एक तो पिच अच्छी हो जाती है, जब टर्न भी हो वो फ्लैट हो जाती है थोड़ी, बल्ले सीमेंट की तरह कंक्रीट पे जैसे बैटिंग करते हैं ना, बदला तो रखी और टर्न भी नहीं होता, स्पिनर से ग्रिप भी नहीं होता होगा। बहुत मुश्किल बाजी, क्योंकि जैसे बॉल पुराना होता जाता है ना, हाँ। सफेद कुकुबरा बॉल की जो ये सिलाई भी जो है ना, वो लेदर में समाने लग जाती है। तो जब आप ग्रिप करते हैं, क्योंकि लेदर में रहता है, गीला हो जाता है, वो कॉटन का धागा होता है, Yeah. तो आप उसमें बॉल में वो पकड़ बना नहीं सकते, और पकड़ नहीं वो बनती तो रैप जो गेंद तो वो बात घूमता करता नहीं है, है, हाँ। वो रेवोल्यूशंस मिलना वो मुश्किल हो जाता है, वो सीधा सीधा चलता है। आप वाली बात बिल्कुल ठीक है। जैसे आप गीला टेनिस बॉल पे ना, कंक्रीट पे आप बॉल फेंक के मारो, बॉल सी लाइन ऑफ बॉल एंड टपाटप मारी चलो। All right, folks. An interesting. Sorry, जी. साबुन नहाने से पहले कैसा होता है, वैसी नॉर्मल बॉल है, फिर गीली हो जाती है तो कैसे हाथ से निकल जाती है। गीली बॉल और ड्राई बॉल में इतना ही फर्क है। छा गए आप। छा गए आप। नहीं भाई, घर में जो आदमी है उसने अगर बॉल नहीं पकड़ी क्या करें, बट साबुन यूज करते ही होंगे सारे। तेरे से अच्छा को बता भी नहीं सकते। हाथ से नहीं, वही चीज है ना। लेकिन आजकल ना शार जल का जमाना है। वो फिर है कि बॉल वो ड्राई है, और फिर कहते हैं नहीं, लोग पूछते हैं कई बार ना, फ्लाइट पे कोई बगल में बैठा होता है तो कई बार पूछते हैं ना, यार आप लोग बात कर रहे थे कि वो बॉल गीली हो जाती, क्या फर्क पड़ जाता है? मैं कहा इतना ही फर्क पड़ता है, नहाने जाओ, साबुन जो पहली बार उठाते हो आप और लगा के दूसरी बार उठाते खच्चे करके हाथ से निकल जाता है। आइंदा कोई पूछे ना तो जहाज में कोई, मेरा मतलब साबुन तो जेब चुकाट के साबुन। That's just. Okay, we might actually get a Sabun ka sponsor on the show now as well, It's right? dangerous for you. It is. No, I don't. तू साबुन ना लगे। नहीं, मैं तो नहीं, सवाल ही नहीं पैदा कर पाया. Not taking that risk. Interesting fact: Australia have not won a game in the ICC Champions Trophy after winning the trophy in 2009. They've not had a single victory. Maybe they can change their fortunes today. And that's the English team all set for their ICC Champions Trophy. Let's see how this goes down for them. They would wanting to start at a high note by a victory today, but Australia also want to perhaps change their record that they've had so far in the Champions Trophy after 2009. You're watching the DP World Dressing Room. I'm Fakhri Anam and this is 10 Sports. We'll see you on the other side.
Welcome back to the DP World dressing room, and images on your screen. Joss Butler there, getting all set for this game in the Gaddafi Stadium. A big smile, and there's the Aussie captain, Steve Smith, also looking pretty determined. I'm sure they want to change the fortunes of the way things are. I'm Fakhri Anam. You're watching 10 Sports. Australian accent. Bhajan, Susral ka accent. You must be very familiar with this, right? Kind of. Kind of. I've been living there for a while now, so I know the accent. I understood him very well. Yep. Although I didn't hear him, but yeah. No, but I mean, अपने कान excited. चेक करा ले. Check कराने. Excited लग रहा था. I mean, that's the most important bit है कि आप you know how badly you want it, and Australian को आप कभी भी write off नहीं कर सकते. True. You know अगर इनकी bowling में देख रहा था तो इनके bowlers जो हैं सारे inexperienced है. कोई भी वो जो अब वो स्टार्क्स में नहीं है, हेजलवुड नहीं है, कमिन नहीं है. I mean अचानक सारी की सारी bowling lineup बदल गई है. पेस बैटरी एटलीस्ट तो सारी बदल गई है. ऑलराउंडर्स नहीं रहे. लेकिन इनको फिर भी मैं राइट ऑफ नहीं करूंगा क्योंकि ये एक तो एक अच्छी बात है कि स्मिथ कप्तान है, स्मिथ एक्सपीरियंस्ड है, इनको चलाएगा अच्छा इस यंग बॉलिंग लॉट को. सो आई थिंक दैट इज अ बिग एज. बट yeah, they'll do the job, I promise you. Yeah, all right. हाजी, किसने सुना है फिल सॉल्ट ने क्या कहा? जाडेजा बाजी? नहीं, मेरे को तो अच्छी बात जो लगी ना, पहली उसने कहा फ्यू रन्स, उससे पूछा गया, इंग्लिश में था. Thank you. ट्रांसलेट करने मुझे नहीं पता. What would you like? Say, a few runs and a win, simple. I think salt उतना ही हो ना खाने में तो ठीक रहता है. बहुत ज्यादा डाल दे तो फिर प्रॉब्लम. तो वहीं सुन के हमने छोड़ दिया उनको. But with that, we're going to take another break here on the DP World dressing room. We'll see you on the other side. Welcome back to the DP World dressing room. And this is the clash that is coming out your way today. Match number 4 at the Champions Trophy. It's Australia versus England, live from Lahore. And this is the DP World dressing room. We welcome you back in, and we're all set here. We're talking about the game. We're talking about both the sides with our experts. Let's take a look at the conditions now. हमने briefly touch किया वसीम वकार about the conditions in Lahore, right? जी. And आपने बताया कि there's a spray, तो उससे वो होता है कि जो dew है वो slip down कर जाती है. You find a bit of a kind of a drier stop. But I just wanted to ask you, there is that water dew that travels down to the root. सीम गीली तो हो जाती है. मैं ये कह रहा था कि वो पूरा वो गीला नहीं होता इतना ज्यादा, बट हल्की सी जब सीम गीली हो जाती है, जो एक्सप्लेन किया था निखिल ने, वो ये किया था कि स्पिनर का ये यहाँ पे ग्रिप नहीं आती और फास्ट बॉलर्स का ये स्लिप होता है. इसलिए आप देखेंगे जब वो करते हैं तो क्रॉस सीम पकड़ के करते हैं. ऐसे बॉल पकड़ करते हैं ताकि वो सीधा ही जाए, तो वो ना स्विंग होता है, ना सीम होता है, ना टर्न होता है. सो इट बिकम ईजियर अनलेस इट्स अ प्रॉपर ड्राई पिच जिस पे गज टर्न हो रहा, उस पे प्रॉब्लम होगी. बट अदरवाइज एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर इज 290 इन लाहौर. This is average first innings batting there, so it's a good batting deck. Yeah, so they still get to, and then chases. It becomes much easier to chase with this moisture. So I think a lot of people obviously chasing 320 chase karna, 40 chase karna is difficult. तब तक बॉल गीला भी हो, but it becomes little easier. I want to ask you this, Ajay Jadeja. Let me bring this conversation to you. हम लोग बार-बार बात करते हैं. The moment you have a 320, 330, 340 on the board, it becomes very difficult to chase for batsmen. Pakistan recently did in the tri series chase Karachi में 350 against not the entire South African side. But I want to say, how do you plan that innings? I mean, as a batsman, as a coach, what is the planning that goes around? Okay, look, guys, we're doing 350. We've got a battery of great fast bowlers. We've got some great spinners, and the pitch is going to assist the bowlers. How do you then plan the innings? What are the ways you go about it? I think the main difference that I see, batting first and batting second, is that you have the similar problems. It's the same conditions might change, same bowlers you are facing, the task of playing each ball, what score you've got per over, whatever you get. Chasing, one thing gets added onto it is that there is a minimum that you need to get to. Whereas when you're batting first, when you're batting, and if, say, you get a couple of good overs from the opposition, you might not take that pressure and make mistake. You don't make mistakes yourself while batting Recovery first. हो सकती है. हाँ, नहीं, और ये भी नहीं है ना कि कहाँ ये 2 रन कम रह गए तो क्योंकि पहले बैटिंग कर रहे हो, आप सोचते हो हाँ जी यार अब इस पोजीशन पे हैं, 10वें ओवर में ही ले लें. अगर आप 60 पे नो लॉस हैं तो आप सोचने लग जाते हैं यार यहाँ से अब 330-40 बन सकता है. लेकिन अगर 2 ओवर अच्छे हो गए तो 326 बन जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. लेकिन जब आप चेज करना शुरू करते हैं और आपको पता है यार 340 से कम तो बना ही नहीं सकते,
तो बॉल तो वही इतनी तकलीफ दे रही है, ग्राउंड वही है, कंडीशंस वही हैं, लेकिन आपको ये कॉन्स्टेंटली अपने दिमाग में एज ए बैट्समैन एज ए टीम चलता रहता है, यार हम पीछे हैं, हम पीछे हैं। तो वो आई थिंक एक चीज है जो आपसे गलतियां करवाती है बल्लेबाज से। और बॉलर्स के लिए एडवांटेज ये हो जाता है कि जब उसने 4 बॉलें डाल दी हैं, अच्छे निकल गए, उसे पता है यार मेरा 3 रन का भी ओवर निकल जाएगा ना, तो ठीक है। तो आई थिंक ये फर्क आता है। इसीलिए मैं तो मानता हूं कि बैटिंग फर्स्ट करनी चाहिए, क्योंकि बैट्समैन के लिए बैटिंग फर्स्ट में ना बड़ा आसान है कि आप ले रहे हो, जो मिल रहा है वो ले रहे हो और फिर आप लूट लेते हो एंड में लास्ट 2 बॉलों में। बैटिंग जब आप चेज कर रहे हो वो उतना ही मुश्किल हो जाता है। आई थिंक ये एक मेरे लिए सबसे बड़ा फर्क रहता है कि बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड की जो बातें होती हैं। Waqar, who do you think has been one of the best chase masters in world cricket? Not just as a team, but as individuals as well. Because you know some people have that. देखो एक नाम स्ट्रेट में आता है, वो वकार भी कह देगा, माइकल विराट कोहली। Yes. आई मीन अगर आप उसकी चेजिंग में एवरेज देखें, इट्स अबाउट 90 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। एंड नॉट जस्ट 2 मैच 4 मैच, 50-100 हैं, 50-100s। Yeah. एक नाम ही आता है स्ट्रेट अवे। बाकी होंगे, बाकी अच्छे प्लेयर हैं दुनिया में, नो डाउट। Yeah, nobody can match him. I mean, अगर उनके स्टैट नंबर्स देखे जाएंगे तो nobody can match him. But then of course, I mean, Brian Lara was another one. हमारे टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। आज के ज़माने में of course विराट है, फिर I mean ये Javed Miandad would also. जावेद भाई was great. आई थिंक इन दोनों की जो ग्रेड्स की बात की है, इनकी स्किल क्या थी खासकर, End ये तक जाते थे। नहीं ये एंड तक जाते थे ना। ये वो जो मैं कह रहा हूँ जो प्रेशर ले लेते हैं चेज का, वो ये लोग नहीं लेते थे, ये बल्कि उल्टा डाल देते थे। महेंद्र सिंह धोनी इज अनदर वन आई कैन टेक। तो इनके सबके करियर्स में अगर आप देखें तो जो स्टार्ट है ना इनका करियर, आई मीन स्टार्ट मतलब इनके करियर 20-20 साल के हैं, छोटा नहीं है, वहां पे ये चेजिंग में सक्सेसफुल है। और towards the end of their careers, if you see that success rate comes down because now the bowlers and the oppositions have also figured out कि आप वेट कर रहे हो कि मैं गलती करूंगा, तो उन्हें डर नहीं रहता कि ये चांस नहीं लेंगे। No, 96 जावेद भाई का मैच। एक मैं मैसेज देना है, so before I forget, कोई सुबह में भूल जाता हूँ मैं। वो मैसेज ये है कि मेरा एक क्लिप इंडिया के लोगों ने बड़ा वो फेमस किया है कि जब मैंने विराट का कहा था अगर उसका रिकॉर्ड देखना है तो स्टार स्पोर्ट्स पे चले जाएं, तो यह भी क्लिप ला देना कि मैं उसकी तारीफ की थी। नेगेटिव। No, I don't. Actually, एक तो बहुत बड़ा इशू क्या है? इशू ये है कि बहुत सारे लोग हमारे सोशल मीडिया पे जो मौजूद हैं, फारिग बैठे हैं, फारिग नहीं बैठे हुए, वो एक्चुअली सिर्फ एक चीज को देख के ना वो उसको समझ ही नहीं सकते कि what is the joke behind it, what is the you know what is the pun intended behind it. They just think अच्छा ये पर्सनल ईगो बेइज्जती हो गई। There's nothing to do with that. Best thing to do is absolutely ignore those people. No, I don't. I'm just telling वो them आप क्या कहते हैं कि फलां चीज बंदर दे की बोलता है बंदर के हाथ जब माचिस आ जाए तो वो जंगल को आगे लगाएगा ये वाला काम हुआ। और एक वो भी है हुए बंदर ते डाई ना मारे। There you have the pitch report there. Is it out of syllabus or not is the question. Let's start with you, Jadeja. भाई क्लास मुझे तो नहीं समझ आई। मैच लाहौर में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, न्यूजीलैंड का बंदा पिच रिपोर्ट करेगा, तो सारी चीजों के बारे में पता चल गया मुझे कि किस तरफ कितना ग्राउंड है, मौसम कैसा है, 21 डिग्री टेम्परेचर है और 66 डिग्री मॉइस्चर है, लेकिन वो पिच कैसी है उसकी बात नहीं, ओनली ब्यूटीफुल। ये पटाखा लग रही है बस। भाईजान मसला है कि you are not the first one. Wasim has a bone to pick. I mean, he's been up against all these pitch reports for a very, very long time. For 3-4 years I've heard him. Because ये कैसी pitch report है? बट पिच रिपोर्ट का है भी ऐसा ना सर, जैसे यहाँ तो सारे ही शादीशुदा हैं, पिच रिपोर्ट वैसी ही है। यू नो आप देखते एक चीज है, जब आप खेलना शुरू करते हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो पिच भी चेंज होती है। That analogy is right up there in gold. It's gold, pure gold. शादी वाली पिच बड़ी जल्दी खराब हो जाती है। नहीं बट फिर एट द एंड ऑफ द स्टोरी क्या है अपनी लाइफ से, पिच जैसी मर्जी हो रहना उसी के साथ है। तो वही वाली बात है, पिच जैसी मर्जी हो खेलना तो फिर भी पड़ेगा। अब आपने देखा, आपने आपको वो दिखाया ग्राफिक पिच बाउंड्रीज का, कितनी कितनी जगह बची हुई है। व्हाई इज दिस 63 मीटर बाउंड्री? ये कोई बच्चे खेल रहे हैं यार, इट्स नॉट फन। I don't know who decides. ICC ने डिसाइड किया होगा उसमें से। I think the idea is to 73 इधर है तो 73 इधर कर दो भाई, 70 मीटर कर दो दोनों साइड पे। I think perhaps the thought process, and I could be wrong, I'm just making a sure. guess here, is that
they want to see more boundaries flourish in this Who? format as well. No, but- ICC and get more people kind of. I want to see good cricket. Boundaries will come if you're a good player. तो Yes, अगर that's बाउंड्रीज देखनी है तो फिर दोनों तरफ 63 कर दो ना Yeah. Yeah, that's फिर true. बाउंड्रीज That तो is आएंगी true. That is true. बट आई थिंक वो वसीम भाई ने जो उस दिन बात की थी ना एक स्टैंडर्ड कर दो आप हाँ, internationally 78 एक standard उसके होना बाद आपने 80 करनी है 85 करनी है वो आपकी मर्जी लेकिन आई थिंक जो मिनिमम है ना उस पे एक सेट होना चाहिए So, वो शादी की एनालॉजी आपने दी ना कि शादी में दिखता कुछ है और फिर होता कुछ है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम पहले थोड़ा बेहतर नजर भी डाल सकते हैं. वी गॉट द हूवर व्हिच इज फेवरेट ऑफ वसीम अकरम. ये जरा हूवर दिखाते हैं आपको, शॉट ऑफ द पिच इन कदाफी स्टेडियम नाउ. लुक एट दैट, लुक एट दैट. फिर मत कहिएगा कि मैंने दिखाया ही नहीं आपको. Yeah, it looks good. या इट लुक्स वेरी गुड एक्चुअली घास से क्या होता है, मट्टी जुड़ी रहती है, टूटेगी नहीं. मेरा नहीं ख्याल इस पे शायद टर्न हो. हम यहाँ बैठ के गेस ही कर रहे हैं. बट एवरेज लाइक स्कोर आई सेड इज 290. सो आई सपोज दोनों टीमें चाहेंगी कि 300 प्लस 320 तक तो जाएं. हल्की फुल्की सी शाइन भी है पाए ना. शाइन भी है, थोड़े क्रैक्स हैं, बट इतना क्लोज अप यहाँ से गेस ही कर सकते हैं. अनलेस जाके टच करो और देखो तो इट्स डिफरेंट आई फीलिंग. थिंक Who over here has the best understanding of pitches? If you were there right now, Wasim, Yeah. what would you do? You'd go put a key in it, you would go spit on it, rub on it. What would you do? spit on it, key on it, that's a bit extreme. Okay. और आपके पास This I'm asking you. और आपके पास ज्यादा से ज्यादा 1.5 मिनट हो पिच रिपोर्ट मैं नहीं, चाबी डेढ़ थोड़ी लेके जाता हूँ. आजकल भाई 50 मिनट बहुत है. मैं 50 चाबी थोड़ी not लेके more than 50 seconds. नहीं, आप पहले देखते हो Yeah. बिकॉज एज अ कैप्टन रहे हैं तो पिच पढ़नी बड़ी जरूरी होती थी. एज अ बॉलर भी पिच पढ़नी, एज अ बैटर का मुझे पता नहीं इंटरेस्ट लेते हैं नहीं लेते ये बच्चे. जनरली वो हमारे दौर में 90s में क्रिकेट होती थी तो घास, वो एक दो बैट्समैन तो वो जाके घास ढूंढते थे. बिल्कुल ब्राउन पिच है, एक घंटाला का है वो, मैं क्या केड़ा का आए थे. पहले बैट बॉलिंग कर लो. बैट्समैन को ही डर होता था कि हल्का सा बॉल घूम ना जाए. बट कमिंग बैक टू लाहौर पिच, इट्स लाइक आई सेड 290 लुक्स गुड फ्रॉम हियर. आई थिंक कभी कभी मैंने देखा है कि ये भी सिलेबस से हट जाती है ये पिच कभी कभी, लेकिन ये जो पिच नजर आ रही है बिल्कुल सिलेबस के मुताबिक. ये ऐसा लग रहा है कि ये जो घास है ना ये आई थिंक दिस विल कीप द सरफेस टुगेदर और बल्ले में अच्छा आना चाहिए इस पे. आई थिंक 300 की पिच लग रही है. निखिल, your thoughts? स्किट करके. और जिस तरह के बाजी कह रहे हैं, I mean, अगर शाम को ओस आती है तो अलग चीज़ है. फिर कप्तान टॉस जीत के ऑफ कोर्स चेस करना चाहेगा, लेकिन ऐसा विकेट है आप पहले बैटिंग करें. शाम को अगर ओस नहीं होती तो फिर आप डिफेंड करना वो पसंद करेंगे. और शाम को कुछ एक्स्ट्रा मदद तेज गेंदबाजों को वो मिल सकता है. All right, with that, it's time for another break here on the DP World Dressing Room. When we come back, we get closer to the action. Stay with us. This is 10 Sports, our special coverage of the ICC Champions Trophy. Welcome back to the DP World Dressing Room. Live images coming out of Lahore. That was Travis Head, Glenn Maxwell there, smiling, beaming. Mark Wood there getting ready for the action. This is, and there's the leggy himself, the only spinner that England have brought, other than Livingston, of course. This is going to be him. With me in the DP World Dressing Room, I've got Nikhil Chopra, Waqar Younis, Wasim Akram, and Ajay Jadeja. We were talking about the game, that we're not very far away from the toss. Captains will be walking out after the pitch. That थोड़ी we've सी seen. परेशानी होगी इंग्लैंड को, उनके कप्तान की कोई फॉर्म नहीं है बिल्कुल. पिछले आई थिंक 10 मैचों में सिर्फ 20 की एवरेज है उसकी बटलर की. हाँ, एंड ही इज द मेन बैटर फॉर देम, जो मिडिल ऑर्डर में आके पहले तो ओपन करते थे. अब उन फिल सॉल्ट डकेट आ गया तो ये चौथे, पांचवें, छठवें नंबर पे आते हैं. Wasim, I want to ask you this. So in 2023 World Cup, and we were doing the show then as well. Yeah. In the 23 World Cup, England came into the 23 World Cup as one of the favorites. Yeah. And then we saw the debacle that the English team went through. Their batters were completely off color. Yeah. Their fielding was terrible. The bowlers were all over the place. What happened? Because itni yaar rakha hua sabne, we are, England is the team to watch out for. England is the team to watch out for. Used to be, not anymore. Yeah. दुनिया की टीमें अब आगे निकल चुकी हैं इंग्लैंड की क्रिकेट मैं से. यही पूछ रहा हूँ कि how is it that in 2023 you're coming into the World Cup as One of the favorites, one of the favorites, and then you're completely off track and you've just not been able to come back on track since then. आई थिंक इनके प्लेयर्स एंड प्लस इनकी काउंटी क्रिकेट का वो स्टैंडर्ड नहीं रहा. यू नो जो 90s में था या 2000 में था, तब काउंटी क्रिकेट वाज वेरी सीरियस. आपके 2 ओवरसीज प्लेयर अलाउ थे, एक खेल सकता था. अब तो आप 3 हफ्ते के लिए, 2 दिन के लिए ओवरसीज प्लेयर बुला सकते हो. सो क्वालिटी, वो लोगों के जो एक मेंबर्स होते थे हर क्लब के, जो रेगुलर साथ टीम के ट्रैवल करते थे, वो खत्म हो गए हैं. सो उससे भी बड़ा फर्क पड़ा है इनकी. Is that because of league cricket? Because a lot of these Yeah, guys want to go play obviously all over the world. T20, yeah. अब जैसे फिल वो अभी एलेक्स हेल्स का मैं भी देख रहा था, इंटरनेशनल क्रिकेट तो रिटायर हो गया है,
तो अब इंग्लैंड ने जो लॉ बनाया था ECB ने कि जी आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी है, आपको किसी लीग की इजाज़त नहीं मिलेगी अपार्ट फ्रॉम IPL. Right. And Alex Hales retired from county cricket as well. वो सिर्फ white ball खेल रहे थे, वहाँ से रिटायर हो गए कि मैं अब पूरी दुनिया में लीग क्रिकेट खेलूंगा. Yes, that has really taken its toll on. So, like English first class is also suffering or is not getting suffered it in. big time, Yeah, not big suffering. time. Yeah, just like, and it reflects Pakistan same position. We don't have that first class structure, and it's now नहीं, reflecting. हमारा the team. स्ट्रक्चर तो चेंज ही होता है ना. इंडिया का स्ट्रक्चर पिछले 75 ईयर से ऑलमोस्ट रणजी ट्रॉफी है, मुश्ताक है, जो भी आपके मेन कौन सी है और आपके रणजी है. नहीं मतलब फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो शुरू हुई थी वो रणजी ट्रॉफी है, Yeah. जो वो तो चल रही है 1934 से. Yeah. और पहले हम कम खेला करते, पहले जोन्स में बटे हुए थे. Yeah. तो फिर भी रिस्ट्रिक्टेड होती थी, तो नॉर्थ वाले सिर्फ एक कंडीशन में खेलते थे. 5-5 टीमों का ग्रुप था, उसमें से क्वालिफाई होते थे. फिर आई थिंक अर्ली 90s में वो चेंज हुआ कि आपने 2 टेबल बनाए. A little bit of confusion here. Australia did win the toss, but उन्होंने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया. एंड में उन्होंने गालिबन बैटिंग की. Steve Smith नहीं लिखा हुआ आगे. हाँ, so Australia have Mistake. won the toss. Genuine and they mistake. are going to be Genuine mistake. It can happen. I do it all the time. No problem. Yeah, you do. Those are not genuine though. स्टीव स्मिथ ने कहा भी, जो बाजी कह रहे थे कि लाहौर में वो थोड़ी ड्यू होती है एंड दैट्स व्हाई इज इलेक्टेड टू इन्होंने फील्ड फर्स्ट. प्रैक्टिस की होगी ना शाम को, तो पता लग गया होगा इसकी वहाँ. टॉस की प्रैक्टिस की थी. नहीं अच्छा. भाजी आजकल All right, guys, so टॉस भी playing 11s are coming up right in front of you, and yes, go ahead. Nikhil, take us to the English team. डकेट और सॉल्ट पारी की शुरुआत कर ही रहे हैं. जेमी स्मिथ 3 नंबर पे, जो उनके विकेट कीपर भी हैं, अमूमन कैप्टन कर रहे थे, लेकिन अच्छी वो साझेदारी हो नहीं रही थी टॉप पे, इसलिए कप्तान नीचे आ गए. जो रूट, हैरी ब्रुक, एवरीबडी इज एक्साइटेड टू सी. बटलर, लिविंगस्टन, आई थिंक आदिल रशीद के साथ ये ऑफ कोर्स बॉल डालेंगे. कार्स, आर्चर, गुड टू सी आर्चर बैक, एंड राशिद, एंड ऑफ कोर्स पेस ऑफ लुक वुड. That's the English team for you. And next up is the Australian team. And Haji, Vicky Payan, take us through your in-laws. देखिए उनके जो ऊपर के 4-5 जैसे आपने मेंशन किया था ना, वो तो नहीं है. बॉलिंग लाइनअप तो थोड़ी वीक जरूर है, लेकिन बैटिंग की तारीफ की जाए तो I like Martin Short. He's a good player. He's a very good player. And Travis Head, Smith at 3, security, and then Labuschagne is also security. English is a very good player, and Carey दोनों attacking player. Who will keep Vic? ये जो नीचे 3 वाले हैं ना, 3 जो Maxwell, Carey, they are the attacking and these are the bowlers. Bowling में मैं अभी भी कहूँगा कि yes, they're good bowlers, but experience की कहीं ना कहीं कमी जरूर दिख रही है. तो कीपर कौन करेगा दोनों में Carey से? करेगा. Carey? Yeah. Carey will carry. दोनों टीमों में ये नहीं लग रहा कि 4 ही बॉलर खेल रहे हैं, क्योंकि 5वां तो लिविंगस्टन को पूरा गिन रहे हैं, ये मैक्सवेल को पूरा गिन रहे हैं. Yeah. ऐसे ही है. तो फिर एक विकेट पटाखा, ऊपर से बॉलर भी नहीं, तो आज तो फिर रन बड़े बनने चाहिए. Yeah? Yeah. जेक yeah. फ्रेजर मैकगर्क ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं खेल रहे. नहीं. We were all thinking that he is going to be part, जो एक्साइटिंग टैलेंट है. उनका नाम बहुत सुना है, रिकी पॉन्टिंग उनकी बहुत तारीफ करते हैं, वसीम भाई ने बहुत देखा, हम सब ने देखा. जब उनको Look, I अवसर think मिला, वो स्टिल अभी तक T20 मोल्ड में है. वो भी वनडे भी जब खेलता है उसी मोड में खेलता है, और वनडे इज अ डिफरेंट फॉर्मेट ऑल टुगेदर. एंड आई थिंक जेक इज बीइंग अ टैलेंटेड गाय, ही हैज टू इवॉल्व हिज गेम अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मेट. तो फिर मैक्सवेल और वो एक जैसे हो जाते, तो मैक्सवेल विद बॉलिंग, सो Yeah. आई गेस दे वर गोइंग विद. All right, folks. और जैसे कि हमने बताया, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है. We'll see English batsmen out very soon. With that, we're going to take a break here in the DP World dressing room. When we come back, there's more on the other side. Stay with us. And we have live images. That's the English team in a huddle right now, getting all set for the game. Australia won the toss, have elected to field, which means the English batters are going to be padding up to come out and face what seems like a somewhat dialed down Australian bowling attack. I am in the DP World dressing room with 4 fantastic gentlemen, Nikhil Chopra, Waqar Younis, Wasim Akram, and Ajay Jadeja. And it is time for predictions, because the experts have to predict. This is going to be interesting. याद रहे दोस्तों कि ये जो predictions हैं, इनका score tally किया जाएगा on the 15th when we play the final at the end of the day. That DP World truck
15th में केड़ा फाइनल I mean, the 15th match of the day. Match day. कोई तो छोड़ दिया करे इसी बीच। You have 2 slips and 2 leg slips. कोई ना कोई तो फाड़ी And I'm slipping constantly. 2 leg slips and slipping constantly. Break is still far away, a few days before we get a day off. And that break day is not an easy day either, by the way. For at least the two of us, it's going to be more gruesome. All right, guys. So ये जो आपको ट्रक हम दिखाते हैं, आपको हमारे सेट के ऊपर आपको नजर आ रहा है, सामने खड़ा है, जिसके ऊपर से जब गुजर गई है अभी. The truck, इसके पीछे जो कंटेनर है, DP World has put a really nice gift for the winner of this contest. So their scores are being tallied for all the predictions. जिसका score highest होगा उसको वो इनाम मिलेगा. एंड अगर टाई हो गया तो वो इनाम मैं लेकर जाऊंगा. सो टाई नहीं होना चाहिए. दिस इज समथिंग यू गाइस हैव टू. इफ यू टाई दैट, इफ से 2 of you are tied at the same There score, should be 2 presents. no, there is going to be one. तू लाएगा. वो मैं लेके जाऊंगा. This is the twist in the plot. Okay, We will see. ये मतलब चिट मेरी पट तोड़ा और सिक्का खड़ा तो वो पाजी का नहीं, ऐसा नहीं है चक्कर भाईजान. सिक्का थ्रोड इन द heads I win, tails you lose. ठीक है ना? That's how it is. But no, we've got something really special, and that container will be unlocked on the final. So let's see what's over your predictions. Nikhil, for you first. पाजी गोल्फ कोर्स है लाहौर में हाँ है. बस ठीक है ऑस्ट्रेलिया Australia. All right. England. मैं घर भी जाना है. ऑस्ट्रेलिया. जादेजा बाजी. Bobbies. England for. All right. So, क्योंकि इतनी अच्छी विकेट है ना, बॉलर है वो शाम की सोच के बैटिंग कर रहा है. हाँ. इनको तो पहले मिल गई है ना, कोई प्रेशर है, मजे करेंगे. 340 रन बनाए, मौज करेंगे. But there you have it, the predictions from our experts. We are now going to take you live after a few messages to the Gaddafi Stadium, Lahore, where Australia and England are going to clash, and we are going to see you at the end of the game. Till then, enjoy the cricket. We'll be back after the match.